Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. For those who are new to the channel, my name is Mrs. Renu Pansal and I am a PGT who is involved in active teaching of classes 10th, 11th and 12th. I have 17 years of teaching experience and would like to share the knowledge I have gained with all curious and inquisitive minds. Today we are going to study the chapter The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. William Saroyan was born on August 31st, 1908 at Fresno in California, US, and he died on May 18, 1981. By profession, he was an Armenian American novelist, playwright, and short story writer. As his parents had immigrated from Armenia, he wrote extensively about the Armenian immigrant life in California. Many of his stories and plays are set in his native Fresno. Some of his notable works are The Armenian and the Armenian, My Heart's in the Highlands, The Time of Your Life, My Name is Aram, The Human Comedy, and he has won many notable awards like Pulitzer Prize for Drama and Academy Award for Best Story for the film The Human Comedy. Before we discuss the deepest nuances of the chapter, let us discuss the title. Summer refers to the idle halcyon days of summer when one relaxes and enjoys the good weather. Moreover, riding a horse is the dream of every horse lover. समर्स के जो दिन होते हैं वो बड़े खुशनुमा दिन होते हैं जब हम लेज़ी फील करते हैं, हम अपने मन की करते हैं. लॉन्ग डेज ऑफ समर होते हैं जब हमारे को किसी काम की टेंशन नहीं होती, ना स्कूल की ना होमवर्क की. और अगर आप हॉर्स लवर हो तो फिर हॉर्स राइड करना ये सबसे बड़ी इच्छा होती है फॉर एवरी पर्सन हु इज़ अ लवर ऑफ हॉर्स. नाउ दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मुराद एंड आरम who, in order to satisfy their passion to ride a horse, steal a white horse during the summers and enjoy early morning rides on it, disregarding the fact that they belong to the Garoglanian tribe whose hallmarks are truth and honesty. अब ये जो कहानी है ये दो बच्चे हैं मुराद एंड आरम की, जो राइडिंग की इच्छा को पूरा करने के लिए एक वाइट हॉर्स चुरा लेते हैं समर सीजन में और उस पर खूब राइड्स लेते हैं और इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो गैरोग्लेनियन ट्राइब के मेंबर्स हैं. गैरोग्लेनियन ट्राइब जो था उनके हॉलमार्क्स, उनके जो आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ट्रुथ एंड ऑनेस्टी थे. द ट्राइब इज़ नोन फॉर दिस वैल्यू सिंस सेंचुरीज एंड द होल स्टोरी, द एंटायर स्टोरी इज़ रिवॉल्विंग अराउंड राइडिंग द स्टोलन वाइट हॉर्स इन द समर. जब ये पूरी कहानी ही स्टोलन वाइट हॉर्स के आगे पीछे revolve कर रही है, then we can easily say that the title is justified. The most important theme of this chapter is the importance of traditions. In this chapter, the traditions of the Garoglanian tribe, which is honesty and integrity, and हमारी free spirit का importance. Free spirit मतलब हमारी मन की इच्छा. जैसे यहाँ पे मुराद एंड आरम की मन की इच्छा थी to take the horse without permission to satisfy the urge to ride. अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने परमिशन लिए बगैर उस हॉर्स को ले लिया. इन दोनों जो दोनों चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, ये जो दो पार्ट्स ऑफ लाइफ हैं, हमारे कस्टम्स को फॉलो करना और हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करना, इन दोनों चीज़ों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है और कैसे इन दोनों में से एक जीतता है एंड हारता है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स. इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू एंड द ट्रायम्फ ऑफ वन. नेक्स्ट थीम अबाउट इन दिस चैप्टर इज राइजिंग अबव पर्सनल डिज़ायर्स टू टेक अ मैच्योर डिसीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. इच्छाएँ तो बहुत होती हैं हर इंसान की, बट एक मैच्योर डिसीजन लेना, एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना, that is again an important theme of this chapter. Third theme is adventure and the thrill of youth. Youth मतलब हमारे जो जवानी के दिन हैं उसमें हर बच्चे की इच्छा होती है to fulfill, to take part in adventurous activities. So that is the third theme.
And the fourth theme is importance of traditions in shaping the character of the youth. जो हमारे traditions हैं वो हमारी सोच को, हमारी समझ को, हमारे character को कैसे shape करते हैं, that will ultimately decide what kind of humans we grow up to be. So these are the four important themes of this chapter. अब इसमें जो main characters हैं that is Aram. Aram is the narrator of the story. वो 9 साल का 9-year-old आर्मेनियन बॉय है. आर्मेनियन बॉय मतलब दे हैव इमिग्रेटेड फ्रॉम आर्मेनिया एंड ही ड्रीम्स अबाउट राइडिंग अ हॉर्स. वो हॉर्स राइडिंग के लिए बिल्कुल पागल है. एंड मोर ओवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ही वर्शिप्स मुराद. नाउ मुराद इज द सेकेंड कैरेक्टर. मुराद इज अ 13-year-old आर्मेनियन बॉय. 13 साल का बच्चा है और वो आरम का कज़न है. मुराद के फादर का नाम है ज़ुराब एंड मुराद की एक खासियत है दैट ही हैज़ अ वे विद एनिमल्स, बर्ड्स एंड फार्मर्स. इसकी उनके साथ बहुत अच्छे से बनती है. उनको अपनी तरह से सोचने पे मजबूर करना, अपने हिसाब से चलाना मुराद को बहुत अच्छे से आता है. मुराद इज़ ऑल्सो क्रेज़ी अबाउट हॉर्सेस बट एट द सेम टाइम मुराद इज़ वार्म हार्टेड. दिल का वो साफ़ है, दिल से वो सच्चा है, जेनरस है, कॉन्फिडेंट है एंड अगेन एडवेंचरस है. मुराद की एक ख़ास बात है दैट ही इज़ द नेचुरल इनहेरिटर ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक फ्रॉम अंकल खुसरौ. अंकल खुसरौ पूरे चैप्टर में मतलब दिखाया गया है कि ही इज़ द इनहेरिटर ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक और मुराद को भी यही क्रेजी स्ट्रीक अपने अंकल से विरासत में मिली है. क्रेज़ी मतलब जिसको हम कहते हैं इसेंट्रिक, थोड़ा सा जिसमें पागलपन होता है, मतलब जो अड़ियल होता है, उस तरह का कैरेक्टर है मुराद का और अंकल खुसरौ का. और मुराद की फेवरेट कैच फ्रेज है आई हैव अ वे विद. ही विल से आई हैव अ वे विद एनिमल्स, आई हैव अ वे विद बर्ड्स एंड आई हैव अ वे विद फार्मर्स. The next character in the chapter is Uncle Khusro. Uncle Khusro is enormous in build. बहुत बड़े हैं, बहुत चौड़े हैं, लंबे हैं. He has a powerful head of black hair. उनके बाल बहुत घने हैं, ब्लैक कलर के हैं. Largest mustache है, बहुत बड़ी उनकी मूछ है. And again he has a furious temper, is irritable and impatient. उनमें बहुत गुस्सा है, बहुत आसानी से चिढ़ जाते हैं और इम्पेशेंट है, उनमें सब्र नहीं है. ही हैज़ अ बूमिंग वॉइस. बूमिंग मतलब बहुत ऊंचा बोलते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं. और उनका भी फेवरेट कैच फ्रेज है इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. कैच फ्रेज का मतलब होता है तकिया कलाम, जो लाइन हम बार बार कहते हैं. द लास्ट कैरेक्टर इन दिस चैप्टर इज जॉन बायरो. जॉन बायरो इज़ एन असाइरियन फार्मर हु हैज़ लर्न टू स्पीक आर्मेनियन. क्योंकि घर बहुत दूर दूर हैं तो जॉन बायरो बड़ा लोनली फील करता था. उनके घर के पास जो भी लोग हैं वो आर्मेनियंस रहते थे. तो अपनी लोनलीनेस को एलिविएट करने के लिए जॉन बायरो ने आर्मेनियन लैंग्वेज को सीखा था. एंड ही इज़ ऑल्सो द ओनर ऑफ द वाइट हॉर्स. मुराद एंड आरम जिस हॉर्स को चुराते हैं उसका ओनर है जॉन बायरो. बट जॉन बायरो हैज़ अ जेंटल हार्ट. You know, when we talk about John Byro, तो उसमें कहीं ना कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी नज़र आता है. चैप्टर अगर आप रीडिंग करोगे तो उसमें ये पॉइंट आता है कि जो लोग थे असाइरिया के वो आर्मेनियंस को प्रेफर नहीं करते थे, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे. बट जॉन बायरो ने सिर्फ अपनी लोनलीनेस एलिविएट करने के लिए आर्मेनियन लैंग्वेज सीखा था. And he became friends with the Armenians. Otherwise, the chapter also has a very subtle underlying theme of racial discrimination. When we talk about racial discrimination, तो फिर हम गैरोग्लेनियन ट्राइब के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही लोग हैं जो आर्मेनिया से असाइरिया आए थे फॉर अ बेटर लाइफ. Now this tribe was poverty stricken. They just had enough money to fill their bellies. इसका मतलब है जब वो आर्मेनिया से आए थे तो बिल्कुल गरीब आए थे और असाइरिया में आने के बाद भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बहुत आलीशान ज़िंदगी जी पाए.
बस इतने ही पैसे कमा पाते थे जिससे उनके पेट भर जाए। बट उनकी खासियत थी, उनके हॉलमार्क्स थे दैट दे वर फेमस फॉर ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। सालों साल, सेंचुरी से उनके उनके मतलब उनकी ऑनेस्टी की मिसाल दी जाती थी, कस्में खाई जाती थी। अब ये जो रेस थी, दे वर प्राउड फर्स्ट एंड देन ऑनेस्ट। इसका मतलब है प्राइड एंड ऑनेस्टी वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स फॉर दिस ट्राइब। दे कुड नेवर टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी। किसी का भी वो फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। फ़ायदा उठाना तो बहुत दूर की बात है। दे कुड मतलब दे कुड नॉट इवन स्टील। कहीं से भी कुछ भी कर लो, बट इस ट्राइब के बच्चे या बड़े बूढ़े या कोई भी यंग मैन स्टील नहीं कर सकता था। और यहीं पे पूरे चैप्टर का रिवॉल्विंग होता है, बिकॉज आरम एंड मुराद ने हॉर्स लिया है। सो कैन वी से दैट इट इज़ स्टीलिंग और बोरोइंग? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर में। गैरोग्लिनियन ट्राइब की एक और ख़ास बात है उनका क्रेजी स्ट्रीक। क्रेजी स्ट्रीक का मतलब है कि एक स्ट्रीक ऑफ एसेंट्रिसिटी, एक स्ट्रीक जो अड़ियलपन की होती है, वो इस ट्राइब की खासियत है। अब ये स्ट्रीक हमें नज़र आती है, विजिबल होती है अंकल खुसरो में। ही इज़ सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। कोई कुछ बोले उसको वो ये चिल्लाकर बिल्कुल चुप करा देते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट उनका फेवरेट कैच फ्रेज था। नाउ इसके इंस्टेंसेस उन्होंने कब कब ये बात कही है, तो सबसे पहले हमें पता चलता है उन्होंने ये बात कही थी व्हेन ही वाज एट द बार्बर्स हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड। वो नाई के थे और अपनी मुस्टैच को ट्रिम करा रहे थे, मूँछों को कट मतलब साफ नहीं मतलब ट्रिम कर रहे थे। तब उनका बेटा एरिक जो है वो भागा आया और उसने अपने पापा को बोला दैट द हाउस वॉज ऑन फायर। नाउ हियरिंग दिस अंकल खुसरॉव रोड, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बार्बर ने बोला कि आपका घर जल गया है, तो बार्बर को भी अंकल खुसरॉव ने चुप करा दिया विद द सेम वर्ड्स एंड यही बात बोली, पे नो अटेंशन टू इट। नाउ मुराद वो अंकल खुसरॉव का बेटा नहीं था, ही वॉज द सन ऑफ जुराद। तो मुराद में नेचुरली ये क्रेजी स्ट्रीक नहीं आना चाहिए, बट गैरोग्लिनियन ट्राइब में ये जो क्रेजी स्ट्रीक थी ये किसी में भी आ सकती थी। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। ये जो क्रेजी स्ट्रीक थी ये ज़रूरी नहीं है कि बाप से ही बेटे को मिलेगी, ये किसी से भी मिल सकती थी। और जैसे अंकल खुसरॉव का फेवरेट कैच फ्रेज था कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, वैसे ही मुराद का भी फेवरेट कैच फ्रेज था, आई हैव अ वे विद। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट क्रेजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन द गैरोग्लिनियन ट्राइब। लास्ट में वो लिखते हैं ये जो क्रेजी स्ट्रीक था, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेड्स था, दिस वॉज कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट। इसका मतलब है कि ये स्ट्रीक किसको मिल जाएगी, कब, कहाँ पे, किस बच्चे में नज़र आएगी, ये कहना मुश्किल था। इट कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड। ये जिस मर्जी में भी क्रेजी स्ट्रीक आ सकती थी। Now I've already told you the summary. The chapter is dealing with two Armenian boys, Murad and Aram, who stray away from the values of trust and honesty. वो अपनी ट्राइब की हॉलमार्क से दूर हो जाते हैं। एंड द एल्डर वन मुराद, वो एक हॉर्स को चुरा लेता है, स्टील करता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय हॉर्स राइडिंग। और जो छोटे वाला है, यंगर वन है एरम, जो नरेटर भी है, वो नहीं चाहता है दैट द हॉर्स शुड बी रिटर्न बिफोर ही हैज़ लर्न टू राइड। वो चाहता है कि मैं लर्न कर लूँ राइडिंग के लिए, राइडिंग करना, उसके बाद ही हॉर्स को लौटाया जाए। बट वेन दे आर कॉट रेड हैंडेड बाय द ओनर, दैट इज़ जॉन बायरो, तो अपनी उनका कॉन्शियंस अवेकन होता है और उनको समझ में आता है कि उनके ऐसा करने से उनके ट्राइब का नाम कितना ख़राब हो सकता है। और तब वो डिसाइड करते हैं टू रिटर्न द हॉर्स, बिकॉज अदरवाइज द नेम ऑफ द ट्राइब विल बी ब्लेमिश्ड। ब्लेमिश्ड मतलब दागदार हो जाएगा। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद द फैक्ट दैट मुराद इज़ इन पोजेशन of a white horse.
ही इज़ पैशनेट अबाउट राइडिंग अ हॉर्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एक दिन वो सुबह सुबह आता है विद अ हॉर्स एंड ही टैप्स ऑन द विंडो और वो इनवाइट करता है एडम को फॉर अ राइड. नाउ बोथ ऑफ देम राइड टुगेदर. फाइनली आफ्टर राइडिंग फॉर सम टाइम मुराद टेल्स एडम कि आई वॉन्ट टू राइड अलोन एंड एडम शुड गेट ऑफ द हॉर्स. नाउ जब मुराद हॉर्स को राइड करता है तो बोथ मुराद एंड एडम आर इन परफेक्ट अकॉर्डेंस विद ईच अदर. परफेक्ट अकॉर्डेंस विद ईच अदर का मतलब है उनका जो तालमेल है वो परफेक्ट है. दोनों अलग अलग नहीं नज़र आते हैं. बोथ द हॉर्स एंड द राइडर अपीयर टू बी द सेम एंड दे राइड फॉर 5 minutes एंड रिटर्न. देन एडम सेज कि आई वॉन्ट माई टर्न अलोन एंड वो हॉर्स के ऊपर बैठ कर जाता है. बट जो हॉर्स है वो एडम को एक्सेप्ट नहीं करता है. इट गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल. इट रैन ओवर द वाइन्स एंड फाइनली इट थ्रू डाउन एडम. हॉर्स अपनी शैतान हरकतें शुरू करता है. वो भागना शुरू करता है बहुत तेज़ी से वाइन्स के ऊपर और एडम को गिरा देता है. अब एडम को गिरते हुए देख के हॉर्स बहुत दूर भाग जाता है और मुराद चिल्लाता है और एडम को डांट लगाता है. He yells at Adam and chides at him that it would take him a year to learn to become to ride. वो बोलता है कि तुम गिरो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हें 1 साल लग जाएगा हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए. तुम बेटर प्रे करो कि हॉर्स को कुछ ना हो. एंड दे गो एंड सर्च फॉर द हॉर्स. व्हेन दे फाइंड द हॉर्स दे हाइड हिम इन अ डिजर्टेड विनेयार्ड. एंड इट इज़ एट दिस पॉइंट दैट एडम सडनली रियलाइजेस that Murad had been taking this morning rides for some time secretly. उसको समझ में आता है कि मुराद तो काफ़ी देर से हॉर्स राइडिंग कर रहा है और आज वो एडम को सिर्फ इसलिए बुलाने आया है because he knew that Adam too had a passion to ride a horse. So that is why he called Adam that day. Now this is where we discuss the most important question. जो मुराद ने हॉर्स लिया था, should we call it stealing or borrowing? Now according to the theme of the chapter, this is stealing the horse because आप अपने ट्रेडिशंस, अपनी ट्राइब की ट्रेडिशंस, अपने ट्राइब का नाम ख़त्म कर रहे हो, अपने ख़ानदान का नाम ख़त्म करते हो जब आप कोई गलत काम करते हो. तो अगर हम थीम के हिसाब से जाएं तो हमें ज़रूर ये कहना पड़ेगा कि मुराद स्टोल द हॉर्स. बट आप चाहो तो आप बोरोइंग भी लिख सकते हो. वॉट एवर यू कैन राइट इन द आंसर इफ इट इज़ आस्क्ड. द ओनली थिंग इज़ दैट यू नीड टू जस्टिफाई. आपकी जो भी सोच है आपको उस सोच को जस्टिफाई करना ज़रूरी है. तो अगर आप कहते हो कि उसने स्टील किया था तो स्टीलिंग का मतलब होता है पर्सनल प्रॉफिट के लिए स्टील करना. और अगर आप कहते हो कि उसने बोरो किया था तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि वो तो सिर्फ अपना पैशन को फुलफिल करना चाहता था. नाउ इफ वी से दैट मुराद सोल्ड द हॉर्स फॉर प्लेजर, तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है? दैट ही डजंट इन्फॉर्म जॉन बायरो. ही डजंट आस्क फॉर परमिशन. वो जॉन बायरो से परमिशन लेके हॉर्स को नहीं लेके गया, तो इस एक्ट को हम स्टीलिंग ही बोलेंगे. सेकेंडली, उसने जॉन बायरो को बहुत ग्रेट डिस्कम्फर्ट कॉज किया था. John Byro was in great difficulty because of the horse being stolen. So therefore we can call Murad's actions to imitate those of stealing the horse. Now the second viewpoint is that Murad borrowed the horse for his passion. उसने हॉर्स को चुराया नहीं है, सिर्फ कुछ देर के लिए बोरो किया है. तो इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी टू कीप द हॉर्स फॉर एवर. He had no intention of keeping it forever. He did not want to sell it for money. वो पैसों के लिए नहीं उसने चुराया था हॉर्स को. And he was going to return it once he had satisfied his desire to ride. उसके अंदर का जो पैशन था उसको थोड़ा सा सेटिस्फाई कर दे, उतना ही वो चाहता था. नेक्स्ट हमारे को जो चैप्टर में से वैलिडेशन मिलता है, वैलिडेशन मतलब प्रूफ that Murad had not stolen the horse. It is at the point when Adam desires to keep the horse till he has learned to ride. But Murad is horrified. He is aghast at this suggestion. Aghast मतलब horrified, shocked होना.
and he shouts out at Aram that he was inviting a member of the Garroglanian family to steal. बोलते कि तुम एक गैरोग्लेनियन फैमिली के ट्राइब के मेंबर को बोल रहे हो चोरी करने के लिए. उसने उसको आगे बोला that the horse must go back to its owner. So ये लाइंस दिखाते हैं कि मुराद के दिमाग में सिर्फ इतना ही था that he had borrowed the horse, he had not stolen it. And last justification is that when he returns the horse is in a better condition. हॉर्स की जो स्ट्रेंथ थी, जो उसकी स्लीकनेस थी, जो उसका शाइन था, वो ज़्यादा मतलब इट वॉज इन अ बेटर कंडीशन एज वेन मुराद हैड टेकन द हॉर्स. नाउ द वेरी आफ्टरनून आफ्टर Adam's first ride, Uncle Khusraw visited Adam's house for coffee and cigarettes. वो कॉफ़ी के लिए और सिगरेट पीने के लिए एडम के घर आए. थोड़ी देर बाद ही जॉन बायरो वहाँ पर आ गए. And then John Byro informed everyone that his white horse had been stolen just last month and was still missing. पिछले महीने ही उनकी white horse जो है उसको चुरा लिया गया था और अभी तक किसी ने उसको लौटाया नहीं है. Now John Byro was very worried because of this. The reasons were that he could not use his surrey. Surrey is a four-wheeled carriage जिसको हम बोलते हैं घोड़ा गाड़ी. तो क्योंकि वो सरे नहीं यूज़ कर सकते थे, ही हैड टू वॉक एवरीवेयर. उनको हर तरफ चल के जाना पड़ता था और उनके जो इस कारण से हिज लेफ्ट लेग वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन. एंड द लास्ट थिंग दैट रियली वरीड हिम वॉज दैट द हॉर्स वॉज वेरी कॉस्टली. इट हैड कॉस्ट हिम $60. जैसे ही जॉन बायरो वापस जाते हैं, एडम रन्स टू मुराद and he informs Murad about John Byro's visit. Then he tells Murad that Murad should not return the horse until Aram has learned to ride it. यहाँ पे मुराद चिल्लाकर बोलता है कि Aram को almost it will take him a year to learn how to ride, and still Aram compels him that it does not matter. He should not return it. He should keep it for a year at least. Now Murad is completely against this suggestion. वो बिल्कुल इस बात के खिलाफ है. एंड ही लैशेस आउट एट Aram दैट द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ओनर. हम उसके ओनर्स नहीं हैं, हॉर्स को हमें रिटर्न करना ही होगा. बट फॉर अनदर 2 weeks दे कीप ऑन राइडिंग द हॉर्स. नाउ वन डे इट सो हैपेंड दैट द बॉयज़ वर आउट राइडिंग विद द हॉर्स. अब मॉर्निंग आवर्स ख़त्म हो गए थे. ये डॉन टाइम पे ही दोनों बॉयज़ राइड करते थे व्हेन नो वन वुड बी देयर. So after riding the horse, they were on the way to Fethwajian's deserted vineyard, जहाँ पे वो horse को चुरा के रखते थे. तो both the boys came across John Byro. Now Murad told Aram that he would talk to John Byro as he had a way with the farmers. And जब उसके सामने आए तो जॉन बायरो ने immediately horse को बड़े eagerly study करना शुरू किया and he asked for the name of the horse. Now Aram replied in the Armenian language that it was my heart, mera dil. But John Byro was not satisfied. He knew that the boys were lying and he was ready to swear that the horse was his. So he asked for permission to look into the horse's mouth, and after looking at the teeth he commented tooth for tooth. John Byro को यकीन था कि उसका ही घोड़ा है. उसका दिल कह रहा था और उसने बोला वो कहता है कि मैं इस बात के लिए कसम उठाने के लिए भी तैयार हूँ. आई एम रेडी टू स्वेयर ऑन दिस. फिर उसने बोला कि नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है. आई वॉन्ट टू लुक एट द हॉर्सेस माउथ. उसने उसका मुंह खोल के देखा और कमेंट किया टुथ फॉर टुथ. इस कमेंट से हमें समझ में आता है कि हैड द बॉयज़ नॉट बिलोंग्ड टू द गैरोग्लेनियन ट्राइब एंड हैड ही नॉट नोन अबाउट देयर फैमिलीज ऑनेस्टी, ही वुड हैव स्वोर्न दैट द हॉर्स वाज हिज. उसको पता था कि ये बच्चे गैरोग्लेनियन ट्राइब के हैं. उसको पता था कि मुराद और आरम के पेरेंट्स बहुत ऑनेस्ट लोग हैं. अगर ये बात ना होती तो वो ये कसम उठाने को तैयार था कि हॉर्स उसका ही है. तो उसने अपने आप को पैसिफाई करने के लिए, बच्चों को पैसिफाई करने के लिए बोला कि दिस इज़ डेफिनेटली द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स. ये ज़रूर मेरे हॉर्स का ही ट्विन है. एंड इफ़ देयर हैड बीन अनदर सस्पिशन मैन,
then he would have believed his eyes instead of his heart. बोलता है ये तो मैं हूँ, अगर मेरी जगह कोई और सस्पिशियस मैन होता तो वो अपनी आंखों पे बिलीव करता, अपने दिल पर नहीं. इस पॉइंट से हमारे अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि what does John Byrow actually believe? Does he believe that Murad and Aram have stolen his horse, or does he believe that they own the horse? तो उसको पता है कि आर्मेनियंस जो हैं वो गरीब हैं. It is not a possibility that Murad and Aram can have a horse of their own. So chances are he knows that the boys have stolen the horse. जब मुराद और आरम जॉन बायरो की कमेंट्स सुनते हैं तो उनका जो कॉन्शियस है, मुराद का जो कॉन्शियस है, इट गेट्स स्टर्ड मतलब वो जागरूक हो जाता है. एंड मुराद न्यू दैट दे कुडंट डिफाइल द फैमिली और द ट्राइब नेम. मुराद जानता था कि हमारी हरकतों के कारण हम अपने फैमिली का नाम खराब नहीं कर सकते थे. मुराद ने ये बात भी रियलाइज़ की दैट जॉन बायरो हैड गिवन देम अ चांस टू सेव देयर फैमिलीज गुड नेम. जॉन बायरो ने ये ना कह के, ये उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम ना लगाकर उनको एक मौका दिया है कि वो अपना नाम बचा ले. सो द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, दे टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज विनेयार्ड एंड पुट इट बैक इन द बार्न. उन्होंने उस हॉर्स को लौटा दिया. बट मुराद का पैशन नज़र आता है, उसका हॉर्स के लिए प्यार नज़र आता है. जाने से पहले he put his arms around the horse, he pressed his nose into the horse's nose, patted it and then he went away. उसके बाद वो गया, उसने हॉर्स को गले लगाया, उसको प्यार किया और उसके बाद वो गया. That very same day in the afternoon, John Byrow visited Aram's house in his surrey. वो हॉर्स को सरे पे लगाकर आरम के घर दोपहर में गया. He showed Aram's mother the horse that had been stolen and then returned, but he commented that the horses were stronger and better tempered. उसने आरम की मम्मा को हॉर्स दिखाया और कहा कि देखो मेरा हॉर्स वापस आ गया और देखो ये हॉर्स जो है आने के बाद ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें ज़्यादा ताकत है और इसका स्वभाव जो नेचर है, इट हैज़ बिकम बेटर टेम्पर्ड, अब वो शांत हो गया है. Now hearing this, Uncle Khusrav became irritated and shouted, "Quiet man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." So with this, the chapter comes to an end. But one very important aspect has not been discussed, that is Murad's affinity with animals and birds. मुराद की एनिमल्स और बर्ड्स के साथ एक अलग ही कनेक्शन था. इसके इंस्टेंसेस हैं चैप्टर में जिसमें पूरा एक क्वेश्चन आता है. सो द फर्स्ट इंस्टेंसेस when he first took the horse, that time the horse wanted to run wild, but Murad had a way with the horses. He could get it to do whatever he wanted. The horses understood him, and जब आरम ने पूछा कि तुम्हारी कैसे अंडरस्टैंडिंग है हॉर्सेस के साथ, तो उसने कहा he had a simple honest understanding with horses. वो हॉर्सेस को जैसे मर्जी अपने इच्छा के अनुसार ढाल सकता था. सेकेंड इंस्टेंसेस व्हेन आरम जाते हैं मुराद को इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट जॉन बायरोज विजिट, दैट टाइम ही फाउंड मुराद रिपेयरिंग द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन. रॉबिन इज द नेम ऑफ अ बर्ड एंड मुराद वॉज टॉकिंग टू द यंग रॉबिन. थोड़ी ही मोमेंट्स में मुराद थ्रू द बर्ड इन टू द एयर एंड दो इट फेल ट्वाइस, बर्ड 2 बार गिरा बट देन उसमें इतनी ताकत आ गई, उसका विंग ठीक हो गया था. इट वॉज एबल टू फाइनली फ्लाई अवे हाई एंड स्ट्रेट. वो काफ़ी सही उड़ान भर पाया और काफ़ी ऊंचे जा पाया. द थर्ड इंस्टेंसेस व्हेन दे रिटर्न द हॉर्स टू जॉन बायरो, द डॉग्स एट द विनेयार्ड दे फॉलोड बोथ द बॉयज़. उन्होंने भौंका नहीं, उन्होंने कोई साउंड नहीं किया, दे वर वेरी क्वाइट. एंड व्हेन आरम क्वेश्चन मुराद अबाउट द डॉग्स बिहेवियर, तो मुराद ने रिप्लाई किया, आई हैव अ वे विद डॉग्स. द लास्ट इंस्टेंसेस जॉन बायरो हिमसेल्फ. According to John Byrow, when the missing horse was returned, it was stronger and better tempered too. He said, so all these things happened. It is all thanks to Murad. So because of this 4 examples, we say that Murad had a great affinity with birds and animals.
So with this, we come to the end of the video. I hope that you liked it and would be encouraged to share it with your friends. Please do not forget to like the video and subscribe to the channel, as I really need the encouragement this provides. Also, do not forget to press the bell icon for further notifications, as I'm going to come up with several videos. Thank you.